خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1440 سنہ ہجری کے جمادی الآخرہ کی آج 25ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی یہ مدنی مذاکرہ جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہوگا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت عمومی طور پہ مچھلی کا شکار جال ڈال کر یا کانٹے وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں کسی اور انداز سے مچھلی کا شکار کیا جا رہا ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس طرح شکار کرنا کیسا؟ اگر مچھلیاں شکار کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ کھانا چاہتے ہیں اس کو، یا دواعن استعمال کرنا چاہتے ہیں یا بیچیں گے، تو ان صورتوں میں تو مچھلی کا شکار ہو یا کوئی بھی شکار جو ہیں یہ جائز ہوتے ہیں، حلال جانور کا، جیسے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ البتہ شکار کھیلنا کہ مار کے پھینک دیتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا، صرف تفریح کے لیے شکار کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے یہ منظر دیکھا، ایک دلچسپ منظر تھا، خدا جانے یہ کوئی قدرتی منظر ہے یا ویسے ہی کسی نے اس طرح کوئی اپنی جھیل وغیرہ بنائی ہے، تالاب، اور اس میں یہ سسٹم رکھا ہے مچھلیوں کا، اور اس طرح مچھلیاں حاصل کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ تمہارا لیے کہ دونوں صورتیں میں نے عرض کر دیں، جائز ناجائز کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام دانش ہے، میرا یہ سوال ہے کیا ہر موسم میں گرم پانی ہی پینا چاہیے، اور کیا ہر شخص کے لیے یہ مفید ہے؟ طباً گرم پانی پینا یہ مفید ہوتا ہے۔ ایک قول بھی ہے کسی کا کہ سردیوں میں گرم پانی پینے سے بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں فائدہ کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ نہ بھی کرے۔ اس طرح کے جو علاج ہوتے ہیں نا، یہ
अपने तबीब से मशवरा करके करना मुफीद होता है। अपना तबीब एक होना चाहिए, तो उसको तबीयत का, उसको मिजाज का ये सब पता होता है कि कौन सी दवा चलती है, कौन सी नहीं चलती, किससे साइड इफेक्ट हो जाता है। नया नया तबीब करेंगे तो वो उसको पता नहीं होता। तो यूं गर्म पानी, यूं जनरल मतलब गर्म पानी जो है ये मुफीद है पीना। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला एक बड़ा प्यारा आपको हसन रज़ा का मदनी गुलदस्ता और कुछ मदनी मुन्ने भी हैं, आपको एक मुश्तरका मदनी गुलदस्ता हम दिखा रहे हैं। बारिश की दुआ पढ़ते हैं। बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह। बारिश की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सईबन नाफिआ, 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 अल्लाहुम्मा सईबन नाफिआ। या अल्लाह नफ़ा देने वाली बारिश बरसा, आमीन सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे हसन रज़ा तारी 7 साल के हो गए हैं। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल मदीना में पढ़ते हैं और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के दामन से विलादत के पहले ही घंटे में ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से उनको मुरीद करवा दिया गया था। तो फैज़ान अमीर अहले सुन्नत जारी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 4 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं। अब चूँकि ये 7 साल के हो गए हैं और अभी अपनी नीयत का इजहार करेंगे। जी हसन भाई, आप क्या नीयत फरमाते हैं? मैं नियत करता हूँ, मैं 7 साल का हुई हूँ, आज के बाद मैं रोज नमाज करानी और इंशाअल्लाह। हमारे हसन रज़ा तारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाबा जानी के साथ सदाए मदीना भी लगाते हैं। गुज़िश्ता दिन एक इस्लामी भाई ने मस्जिद में आकर इज़हार किया कि आपके मदनी मुन्ने की आवाज़ सुनकर मुझे गैरत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज फजर के लिए मस्जिद में आपके मदनी मुन्ने की सदाए मदीना सुनकर आ गया। दुआ कीजिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मदनी मुन्ने को दावत इस्लामी का अज़ीम मुबल्लिग बनाए, आलिम बाअमल बनाए, मुफ्ती दावत इस्लामी बनाए। सल्लल्लाहु अलैहि
کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ مجھے مل جائے اور اس شخص کے پاس بھی رہے تو یہ غبطہ یعنی رشک ہے۔ ہم جب اپنے اطراف میں مالدار یا کسی نعمت سے سرفراز شخص کو دیکھتے ہیں تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے، جو کہ حسد ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ حسد کی جگہ رشک کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ حسد کے عذابات اور اس کے نقصانات پر غور کریں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت اس سے چھن جائے، زوال لگ جائے، اس کو ضائع ہو جائے، اس کی نعمت واپس لے لی جائے اس سے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ایک تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ تو بہرحال یہ کہ تو یہ حسد ہے جو نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور حسد کرنے والا ایسا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور جس کو نعمت ملی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ملی، اس کی عطا سے ملی، اب اس پر حسد کرنا، جلنا، اس کے ضائع ہونے کا خیال، یعنی کہ وہ جمانا دل میں تمنا کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہی تو حسد ہے۔ تو اس سے تو بچنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اور غبطہ یعنی رشک، تو اس کو رشک میں تبدیل کر دیں کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ اس کو برکت دے اور ایسی مجھے بھی عطا کرے، اس کے ضائع ہونے کا وہ نہ کرے تمنا، ویسے کہ اس جیسی نعمت مجھے مل جائے، مجھے بھی ملے، تو یہ غبطہ یا رشک کہلاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ تو کوشش کرنے سے ہوگا، تکلفاً کوشش کرے کہ کسی کی حسد پیدا ہو تو اس کو غبطے کی طرف اس کو یعنی کہ کنورٹ کرے کہ مجھے یہ نعمت ان کو بھلے ان کے پاس رہے اور اللہ ان کو برکت دے، مجھے بھی اللہ کریم ایسی نعمت عطا کرے۔ جیسے کوئی آدمی ہے کہ اب دنیاوی معاملات میں تو کیا غبطے کرنا تھا، یہ دم نہیں ہے اس میں۔ اب کو اربوں پتی ہے، مالدار ہے، تو اب غبطہ کرے آدمی، رشک کرے کہ مجھے بھی، میں بھی مالدار ہو جاؤں اور اربوں پتی ہو جاؤں۔ میں صحیح بولتا ہوں، یہ کروڑوں پتی، اربوں پتی ہونا دنیاوی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہے۔ پائی پائی کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی لوگ جلتے ہیں مالداروں سے، پھر ان کے بچوں کو اغوا کر جاتے ہیں، ڈاکو پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھگ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بس وہ اللہ کریم اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اسی کے در کے محتاج رہیں، اور ہمارا پیٹ بھر جائے، تن ڈھک جائے، سر چھپ جائے، یہ دعا مانگنا عافیت والی ہے۔ باقی زیادہ مال مانگ کر اپنے آپ کو آزمائش پر پیش کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جائے گا تو پھر صدمے دے گا، ہوگا نہیں ہے تو جائے گا کیا؟ کسی کی جیب کٹ جائے اور اس میں لاکھ روپے ہوں تو اس کی نیند اڑ جائے گی، بہت صدمہ ہوگا۔ اور دوسرے کسی کی جیب کٹ جائے، اس میں تھی ایک 10 روپے والی تسبیح، وہ چلی گئی، یا پھٹا ہوا رومال تھا وہ نکل گیا، اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا جتنا لاکھ روپے والے کو ہوگا۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے حسد، اس کا نام ہی حسد ہے، اور اس میں اس کے متعلق جو ہے وہ ضروری معلومات، اس کی تعریفات، اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے متعلق دعائیں وغیرہ، بہت ہی اہم کتاب ہے، اور 97 پیجز ہیں اس کے، جس کی جو قیمت ہے 30 روپیز، 30 روپے ہے۔ تو اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں بھی اور عام بھی کریں اس کو۔ احمد علی اتاری، مدنی۔
जामिअतुल मदीना की सूबा मक्की की मुशावरत का रुकन मजलिस अर्ज कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी माह पाक इंतजामी काबीना के निगरान हाजी शाहिद अत्तारी का जदवल हुआ। बाबुल मदीना में नाज़िमीन किराम का मदनी मशवरा हुआ। जामिअतुल मदीना को खुद कफील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस खुद किफालत के हवाले से एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मदनी अतियात बॉक्स मजलिस के तहत मुख्तलिफ जामियात में अतराफ में दुकानों पर मदनी अतियात बॉक्स रखने के हवाले से 10 जामिअतुल मदीना का जदवल बन चुका है, जिसमें नुमाया कारकर्दगी जामिअतुल मदीना फैज़ान खजान इरफान जो कि गुलबहार हजी गिरोन के करीब वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी एहतियात बॉक्सेस उन्होंने 560 रखवा दी और मजीद जो मुकम्मल कारकर्दगी है 10 जामिअतुल मदीना की वो डबल 1243 है। आप मदनी फूल भी इरशाद फरमा दीजिए और इन तलबाए किराम को दुआओं से भी नवाज दीजिए। माशाअल्लाह मदरस जामिअतुल मदीना के लिए खुद कफील बनाने के लिए हमारे तलबा किराम कोशिशें तेज तर किए हुए हैं और मदनी अतियात बॉक्स भी लगा रहे हैं। ये तो सारे जामिअतुल मदीना को तकलीद करनी चाहिए इनकी। माशाअल्लाह हमारे दुनिया में कितने जामिअतुल मदीना है, तो जहाँ जहाँ मैंने के कोई सी रुकावटें ना हो तो वहाँ मदनी अतियात बॉक्स दुकानों पर पहुँचाएं, घरों में भी रखें और इस तरह मतलब ये कि अपने आप को खुद कफील करें। या अल्लाह जो हमारे तलबा किराम, असातिज़ा किराम, नाज़िमीन किराम मदनी अतियात के ताल्लुक से अपनी काविशें कर रहे हैं, इन्हें इनमें कामयाबी भी अता फरमा, दोनों जहानों की भलाइयाँ इनका मुक़द्दर कर दे और जो जो अपने जामिअतुल मदीना को खुद कफील कर रहे हैं अल्लाह इनको नेकियों का मालदार बना दे कि कब्र में ये मालदार हो, क़यामत के रोज भी मालदार हो, जन्नत में बेहिसाब दाखिले से मुशर्रफ हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अली खान फेसबुक पेज पर सवाल कर रहे हैं कि प्यारे अमीर अहले सुन्नत, कुछ लोग इतना सताते हैं कि इंसान गीबत करने पर मजबूर हो जाता है, क्या किया जाए? गीबत करने पर नफ्स मजबूर करता है, फिर सब्र किसको बोलते हैं? तो सब्र तो ये तो गीबत करना तो फिर सब्र तो गया, उल्टा मतलब है कि गुनाहगार हुआ ना। वरना सिर्फ अगर सब्र ना करता कोई तो हर सूरत में ये गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ तो मतलब सीधी सीधी कबीरा गुनाह में ये मुब्तला हो रहा है। ये इम्तिहान है और इम्तिहान में ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो ज़हनी आजमाइश होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जोर लगाना पड़ता है, जहन को दिल को मार के मनाना पड़ता है। तो इसलिए वो सब्र करें, सब्र करें और सब्र करें। मेरे मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब रंजो गम हाजिर होता तो आप बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। तो ये पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये मतलब जो लोग जुल्म करते हैं तो उनको हिदायत दे और मुझे सब्र अता कर, गीबत से बचा, गुनाहों से बचा, दिल आजारियों से बचा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि यूरोपीय ममालिक में बाज़ घरानों में नमाज से पहले इस्लामी भाई या मदनी मुन्ने अज़ान देते हैं। क्या इस तरह हर एक का अज़ान देना सही है और घर में इसको राइज करना कैसा? इस अज़ान का जवाब दिया जाएगा, रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
تو گھروں میں اذان دینا تو اچھی بات ہے، جب بھی نماز پڑھے گھر میں تو اذان دے، اور بڑا دے یا بچہ دے۔ بچہ اذان وہ دے کہ جو سمجھدار ہو، نابالغ ہو، سمجھدار ہو، تو وہ اذان دے تو اس کی اذان درست ہے۔ گھروں میں رائج کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مائک نہ لگائے جائیں، اور اگر اتنی زور سے آپ نے اذان دی نا کہ سارا محلہ اس کو سنے، تو ہو سکتا ہے لوگ باتیں کریں گے، کیونکہ لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں، یہ گانوں سے مانوس ہیں۔ گانوں کی آواز ہوتی ہے تو اس میں یہ ان کی سمجھ میں آتا ہے، ہر گھر سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی نا تو یہ بولیں گے کیا گھر گھر میں مسجد بنا دی ہے تم لوگوں نے۔ تو اس لیے موقع مال کے حساب سے اتنی آواز سے دے کہ گھر میں ہی گھر والے ہی سنے اذان۔ نمازوں کے لیے اچھی بات ہے دینا، اذان دے، اقامت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نیکی کی دعوت دے، لیکن اس میں مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ بعض صورتوں میں سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، جیسے جو ملاقات کے لیے آیا اس کے لیے سنت ہے کہ سلام کرے، اور اس پر واجب ہے کہ جواب دے۔ اب اگلا پہلے ہی خود مصروف ہے اور اس کو سلام کرنا، جیسے ایک چٹکلا ہوا تھا کہ دارالفت اہل سنت میں کوئی سائیں بھائی گئے ہوں گے، سلام کیا ہوگا، وہاں سے جواب کی آواز نہیں آئی، تو وہ نیکی کی دعوت دینے لگے کہ گناہ ہو گیا اور توبہ کرو۔ تو مفتی صاحب تھے، مفتی ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ توبہ تم کرو، کہ تم کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا کہ جو سوال کرنے آئے تو سائل کے سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا، اور تم نے سیدھا سیدھا مجھے توبہ کا حکم دے دیا کہ میں جواب نہ دے کر گناہگار ہو گیا تو میں توبہ کروں۔ تو توبہ تم کرو کہ جب شریعت نے کام کو گناہ نہیں کیا، تم نے گناہ کہا کیوں اس کو؟ یہ ہے سمجھنے کی بات ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے علم دین ہونا چاہیے، اس کے لیے درس نظامی شرط نہیں ہے۔ جو نیکی کی دعوت یہ دے رہا ہے اس کی اس کو معلومات ہو اور اس کو اتنا علم ہو کہ وہ درست نیکی کی دعوت دے پائے۔ اب ہو سکتا ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، ورد و وظیفہ کر رہا ہو، تو سلام کرنے والے کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے اس پر بھی سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ سلام کر دیا ٹھیک ہے، جواب واجب نہیں ہے۔ ہاں منہ میں نوالا نہیں ہے، فارغ ہے تو جواب چاہے تو دے دے، واجب نہیں ہے۔ 101 مدنی پھول کا رسالہ ہے ہوں گے یہ مدنی پھول سلام کے۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بھی سلام کے احکام موجود ہیں۔ بعض اوقات آدمی کی توجہ نہیں ہوتی، وہ سلام سنتا نہیں ہے، یا سلام کرنے والے کا تلفظ اتنا غلط ہوتا ہے کہ اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اکثر ایسا ہی ہے کہ سلام کا تلفظ ہی غلط ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم، یعنی میم کو ساکن پڑھا، پیش نہیں پڑھا، تب بھی اس کا جواب واجب نہیں ہے۔ بلوچستان پاک فیضی کابینہ اس وقت مدنی چینل کے اسکرین پر دیکھے جا رہے ہیں۔ مرحبا، اہلا و سہلا، ماشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کیجئے اور کروائیے، ماشاءاللہ۔ یہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور پاک حیدری کابینہ، یہ بھی ہمارے سامنے، یہ تو ہاتھ بھی لے رہا ہے، جھنڈے بھی اٹھائے، ماشاءاللہ، جوش میں یہ تو مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کیجئے اور کروائیے، اور
मदनी काफिलों में सफर भी करते रहिए और दूसरों को इसकी दावत भी देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आला हज़रत के इस शेर की शरह बयान फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अवैस असलम अत्तारी ज़ियाकोट से। पहले इस तरह सफ़र मदीना में सुना है कि वो कुछ डाकू जो होते ना वो लूट लेते थे राह मदीना में, क्योंकि पहले तो ऊंटों पर घोड़ों पर सफर होता था। तो ये उस दौर का आला हज़रत का शेर है। तो लोग डराते थे कि मदीने जाओगे तो ऐसा ना हो तुम्हें रास्ते में कोई डाकू लूट लें। तो आला हज़रत ने सफर किया और ऊंट पर और इस तरह मदीना शरीफ का। तो इस पर वो आला हज़रत को कोई हादसा पेश नहीं आया इस तरह का। तो ये इस पर गालिबन ये शेर आपने ये नज्म फरमाया कि हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बगाने वालों को ये राह डर की है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें तो सुकून के साथ आराम के साथ अपने साए में ले आए, मदीना शरीफ की हाजिरी से मुशर्रफ फरमाया। जो जिनको मदीने जाना नहीं होता, नखरे करते हैं, उनके लिए ये राह जो है ना ये डराने वाली है। हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। जो हिम्मत कर ले अल्लाह पर भरोसा करके तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। ये तसल्ली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कल ये पूछना था कि अभी मछली के बारे में जो है वो फरमा रहे थे क़िबला काबा इलियास कादरी का, तो मछली का एक जो है वो क्लिप चला था उसके बारे में। मैंने पूछना ये था कि मछली को जो है वो मछली का ज़िबे शरी जो है वो उसका क्या तरीका कार है। जैसे مثلا हर चीज को हम ज़िबा करते हैं तो वो हलाल होती है, तो मछली की जो तस्बीह है इसका जो ज़िबे शरी है वो किस तरीके से होता है। मसलन हम शिकार करके पानी में से तो निकाल लेते हैं उसको। मछली का ज़बह शरई नहीं है, मछली का भी नहीं, टिड्डी का भी नहीं है। टिड्डी भी हलाल जानवर है, तो इनका ज़बह शरई नहीं है। बस ये किसी तरह भी जैसे कि बस वो सिर्फ तबई मौत जो मरती है ना वो भी पानी के अंदर और उल्टी तैर जाए वो हराम होती है। बाकी मछलियाँ जो भी हैं, जो मछलियाँ हैं वो हलाल है। तो इनको पानी से बाहर निकालते हैं तो ये मर जाती हैं, पानी के बगैर ये जिंदा रहती ही नहीं है। तो ये ज़बह शरीफ वैसे इनका बाकायदा नहीं है, इनमें खून भी नहीं होता मछली में। ये जो गाढ़ा गाढ़ा नजर आता है खून जैसा है, कोई ये लिक्विड है। आला हज़रत ने फतह रज़वी शरीफ में लिखा कि ये मछली में खून नहीं होता। तो ज़बह इनका नहीं होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद राशिद अत्तारी फैजान फरीद गग्गो मंडी से। प्यारे मुर्शिदी की बारगाह में सवाल करना है कि मैं मदनी माहौल से पहले मेरी बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम मैंने रखा था सहाबिया कौसर। पापा जानी सहाबिया उसको कहते हैं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी आंखों से देखा। क्या ये नाम रखना अब जायज है? जवाब अनायत फरमा दीजिए। सहाबिया की तारीफ जो आपने बयान की ना वो भी दुरुस्त नहीं है। सहाबी और सहाबिया वो होते हैं कि जिन्होंने ईमान की नज़र से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई, जियारत की, चाहे एक लम्हे के लिए सोबत उठाई। जैसे नाबीना साहबी थे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तुम, ये नाबीना थे, ये सोबत उठाई, देखना भी शर्त नहीं। तो
चाहे एक लम्हे की, एक सेकंड की सोबत मिली ईमान के साथ और ईमान पर खात्मा हुआ, ये सहाबी होते हैं। वरना देखना ही अगर सहाबी होता तो अबू जहल ने भी देखा था सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, अबू लहब ने भी देखा था और बहुत सारे कुफ्फार ने देखा था, तो वो सहाबी थोड़ी है। खैर, अभी अगर सहाबिया नाम रखना, हाँ भाई यूनिक नेम, नाम इसकी इजाज़त नहीं बनेगी कि इस तरह का नाम रखा जाए कि ये तो एक तो उंगलियां उठेंगी इसके ऊपर, दूसरा ये कि लोग बातें बहुत ज़्यादा करेंगे कि ये सहाबिया है, उसका नाम सहाबिया रखा हुआ है। बस ये यूनिक नेम का बड़ा जज्बा है, यानी जो बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग हो ना, अगर एक बेटे का नाम इदरीस और दूसरे का नाम को बताते ना ये इबलीस रख लो, तो शायद ये रख लेंगे। इनको समझनी पड़ेगी कि इबलीस किसको बोलते हैं। इबलीस ये शैतान को बोलते हैं, नाम रखा नहीं जाता ये। वैसे बोलता हूँ यूनिक नाम का बड़ा शौक है, तो बाज़ों का तरह तरह के अजीब व गरीब नाम लोग रखते हैं। तो सहाबिया नाम ना रखें, किसी सहाबिया के नाम पर नाम रख लें। मसलन आयशा सहाबिया का नाम है, फातिमा सहाबिया का नाम है, और इनको तो ये भी निस्बत हासिल है कि ये बिनते रसूलुल्लाह हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपने हाथ से कमाने के क्या फजाइल हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा पाकीज़ा खाना वो है जो अपनी कमाई से खाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का मेरे ना न्याज अहमद है जी। मैं जनाब सवाल ये करना भी मैं चाह का बहुत आदी हाँ, दिहाड़ी 3-4 बारी चाह पीना कड़क हाँ जी। चाह के बारे दस दो हजरत साहब मैं जवाब दे दो जी, सेहत के बारे नुकसान है कि नहीं? आपकी उम्र जो है ना, इस हिसाब से मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फौरी तौर पर अपने गुर्दे चेक करवा लें, क्योंकि चाय जो है ना गुर्दे को नुकसान करती है। फिर कड़क चाय ये तो और भी खतरनाक है। फिर 3-4 चाय आप पीते हैं, 3-4 होना अपनी जगह पर है। अब कप की साइज जो है ना ये तरह तरह की होती है, यानी मैंने तो इतने बड़े बड़े कप लोगों को चाय पीते देखा है, जिसको यूं अपने बोलेंगे ये कप है या जग है। फिर ज्यादा चाय पीने में, कड़क चाय में चीनी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, वरना वो कड़वी लगेगी। तो यूं शुगर का टेस्ट भी आप करवा लें, अल्लाह करीम महफूज रखे। वो सारे टेस्ट गुर्दे के करवाने होंगे आपको। ये मशवरा है, कंपलसरी नहीं कह रहा हूं। आप अल्लाह करे कि आप सेहतमंद हो, खुदा ना खास्ता कोई चीज हो तो वो सामने आ जाए तो उसका इलाज किया जा सके। तो चाय का इस्तेमाल कम किया जाए और कड़क चाय ना पी जाए, यानी कि नॉर्मल चाय पी जाए, और मीठे में मीठी ना हो, एकदम मतलब शरबत की तरह ना हो। और सफेद चीनी तो मैंने दावत इस्लामी तो बनी भी नहीं थी, मैं तब एक आर्टिकल देखा था, उसको लिखा था चीनी मीठा जहर है। तो अब भी डॉक्टर साहिबान जो है वो सफेद चीनी से मुत्तफिक नहीं है। इसकी जगह अगर गुड़ चलता हो ना चीनी की जगह, तो गुड़ अच्छा चाय में, मगर वो भी मुनासिब मिकदार में, शरबत की तरह मीठा ना कर दे। शहद भी डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा शहद को हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर असली शहद लाएं कहां से। तो बहरहाल चाय जो है ना ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती है, तो कम इस्तेमाल करनी मुनासिब है। जिसकी आदत ना हो और वो बचता है चाय से, तो बचना ज्यादा अच्छा है। ये पिए ही नहीं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स ने
شراب پی ہوئی ہے اور 40 دن اس کو پورے نہیں ہوئے اور انہی 40 دنوں میں اسی کی شادی ہے، تو کیا اس کی نکاح ہو جائے گی؟ شراب 40 دن کسی نے پیے یا نہیں پیے ہے تو سخت گناہگار، اور توبہ اس پر فرض ہے، توبہ کرے، آئندہ نہ پینے کا عہد کرے۔ البتہ نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شراب پینے والے کا بھی نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن شراب ہے بڑی خراب، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر پیے گا تو اس سے سچی پکی توبہ کر لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ثاقب ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکی ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے کا ایک معنی یہ ہے کہ پاکی کا اجر بڑھ کر آدھے ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے بھی مسلمان کے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لہذا ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ طہارت یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا کہنا کیسا؟ فرشتے جو ہے نا یہ معصوم ہیں اور گناہ سے یہ بالکل گناہ سے پاک ہیں، اور جو ان کو کام اللہ نے سونپا اس میں یہ غلطی نہیں کرتے، اس کو برابر یہ بجا لاتے ہیں۔ مزید مفتی صاحب کیا مدنی پھول دیتے ہیں؟ جی یہی ہے کہ اصل میں فرشتوں کی غلطی وہی انہی مقام پہ عام طور پہ بولی جاتی ہے کہ جو ان کے سپرد کام ہوتے ہیں اور اس میں وہ خطا کرتے نہیں ہیں، تو یہ ایک طرح سے توہین ان کی بنتی ہے، اور فرشتوں کی توہین یہ کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عرب شریف سے ایک تاثر کے ساتھ پھر سوال اردو خلاصے کے ساتھ ہے۔ شیخ عبد القادر موجود ہیں اور شیخ نور موجود ہیں۔ شیخ نور جو ہے صومالیہ کے وزیر اوقاف بھی ہیں۔ شیخ عبد القادر تو بابا کی محبت میں جو ہے وہ انتہائی گم ہے، اور بابا کہتے ہیں میں دل سے ان کو سلام کہہ رہا ہوں، دل سے سلام کہہ رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ کا جو ہے پیغام براہ راست عرض کر دیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا شيخنا حفظك الله، وعليكم السلام من بعيد ورحمة الله وبركاته، وسمعنا منك وقرأنا والتقينا بتلاميذتك ومريديك، وإن شاء الله نتمنى أن نزورك ونتبرك بالجلوس معك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، وإحنا مشتاقين لك من بعيد، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ونسلم عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ عندي سؤال. أنا عدي مصطفى من سوريا، مقيم في السودان، والآن في قافلة المدينة. أنا في قافلة المدينة ورايحين نزور المقابر. بدي طلب منك سيدنا الشيخ أن أعرف الوقت المحدد، أي يوم من الأيام وقت المحدد لزيارة المقابر، الأفضل لزيارة المقابر. جزاك الله خيرا. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم سودان میں مدنی قافلہ میں حاضر ہیں،
اور ہمارے ساتھ ادئی مصطفیٰ الحمدللہ موجود ہیں، جن کا تعلق ملک شام سے ہے، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض کیا ہے کہ یا سیدی ارشاد فرمائیے کہ زیارت قبور کے لیے کون سے ایام اور کون سے اوقات افضل ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ زیارت قبور کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل جمعے کا دن ہے اور صبح کا وقت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ کعبہ مشرفہ پر جو پہلی نظر پڑنے کی فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ حرم مسجد الحرام میں داخل ہوئے پہلی مرتبہ اور کعبے پر جو پہلی نظر پڑی، اس سے صرف وہی مراد ہے یا جب جب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور کعبے پر جب جب پہلی نظر پڑے گی یہ مراد ہے؟ اس میں بارش شریف میں کہ جب کبھی رات دن میں جتنی بار کعبہ معظمہ پر نظر پڑے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار کہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور دعا کریں کہ وقت قبول ہے۔ پہلی نظر کی صراحت نہیں ہے اس میں۔ امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے چند مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق چند مدنی پھول حاضر ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری ایسی تھی کہ اپنے مبارک نالین خود گانٹھ لیتے، مبارک جوتیاں جو تھی وہ خود ضرورتاً اس کو سی لیتے تھے کہیں سے اگر ضرورت پڑتی تو۔ اپنے مبارک کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے، کپڑوں میں خود پیوند لگا لیا کرتے، گھر کے کام کاج میں مدد فرماتے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیاری بھوک کی وجہ سے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے، جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے یعنی کھا لیتے۔ حلال و پاکیزہ کھانے سے اجتناب نہ فرماتے، حلال و پاکیزہ کھا لیتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی، صرف کھجور ہی پاتے تو وہی تناول فرما لیتے یعنی کھا لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار یعنی کنٹینیو 3 دن سیر ہو کر گندم کی روٹی، کڑک کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ پاک سے جا ملے، یعنی آپ کی وفات شریف ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل فقر اور بخل کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ خود دوسروں کو ترجیح دینے اور ایثار کے لیے تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ روحیں، سنا ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، اگر گھر تبدیل کر لیا جائے تو پھر روحیں کہاں آئیں گی؟ جہاں آپ رہتے ہیں وہ گھر روحوں کو مل جاتا ہے تو دوسرا بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے تو وہاں کر سوال کریں گے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد میں کنگھی کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں کنگھی کرنے سے بچنا ہوگا کیونکہ اس کے بال جھڑیں گے مسجد میں۔ اگر کوئی احتیاط سے کر سکتا ہے، بال نہیں ٹوٹتے، چادر بچھا کر اس نے کی اور بال اگر گرے تو اس کی اپنی چادر میں گرے تو جائز تو ہے، لیکن اس سے منع ہی کرنا چاہیے، ورنہ اعتکاف میں یہ سب جگہ یہ کنگھیاں کرنا شروع کریں گے تو سب کو احتیاط کرنا آتی نہیں ہے اور بال وہ گراتے رہیں گے، اور اس کی تو ظاہر ہے کہ مسجد کو تو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला को दुनिया में नहीं देख सकते तो क़यामत में कैसे देखेंगे? तो जन्नत को भी तो हमने दुनिया में नहीं देखा और बहुत कुछ नहीं देखा है, लेकिन हम तो ईमान लाते हैं। तो जब अल्लाह चाहेगा हमको तो हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे और अल्लाह की अता से जाएंगे महबूब के सदक़े में। और जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह का दीदार है, उसके करम से वो भी अता होगा और हम जैसा रब चाहेगा वैसे उसका दीदार करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें अक्ल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत ही क्या है? जन्नत में दाखिले से पहले भी दीदार तो होगा, जन्नत के दाखिले के बाद वो मुख्तलिफ़ दर्जात के एतबार से दीदार होगा, और जन्नत में दाखिले से पहले जब क़यामत के दिन होगा तो उसमें भी मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि बहुत सारे खिलते चेहरे होंगे जो अपने रब की ज़ियारत करते होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारिशों के ताल्लुक़ से दो सवालात हैं आजकल हो रही हैं, एक साथ चला रहे। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आजकल बारिश वगैरह का मौसम है तो वो कपड़ों पर छिट्टे वगैरह पड़ जाते हैं, तो नमाज जनाजा या नमाज या इज्तिमा वगैरह में वो कपड़ों का फिर प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? मोहम्मद राशिद अली अत्तारी समा सटर जिला बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है, चूँकि आजकल पंजाब में बारिशों का सिलसिला है, बारिश के वक्त पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक बता दीजिए। ये बारिश के ताल्लुक से दुरूद पाक जो मशहूर है, हकीकत में वो बारिश का नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद क़तरातिल अमतार, कि या अल्लाह अपने नबी पर इतने दुरूद भेज जितने बारिश के कतरे हैं। तो ये हमारे यहाँ ये गलत फहमी है, हम लोग यानी कि ये समझते हैं कि ये बारिश का है, तो ऐसा नहीं है। ये जब भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। बारिश में खुसूसन ये याद आ जाता है तो बारिश में पढ़ने में भी हर्ज नहीं है। और बारिश का पानी बाबरकत है, मान मुबारकन कहा गया इसको, बरकत वाला पानी, ये बारिश और ये पाक है। अच्छा, अब शायद साइल का मतलब ये होगा कि रास्ते में जो पानी जमा हो जाता है और उसके छींटे कपड़ों पे, जो हवाई चप्पल पहनते हैं ना खासकर, उनके पीछे काफी छींटे उड़ के पड़ते हैं। तो जब तक यकीनी मालूमात ना हो तो रास्ते की कीचड़ पाक होती है, ये बारिश की हो या वैसे ही किसी और जरिए से हो, तो इसको नापाक नहीं कह सकते, पाक है। अब रहा ये कि अगर बहुत सारी इस तरह के छींटे पड़े हुए हैं तो मस्जिद में इस तरह जाना जो है ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कीचड़ मस्जिद में भी लगे, फिर देखने वालों को भी इससे घिन आएगी। तो इसलिए कपड़े तब्दील कर लिए जाएं। अगर बचा कर चले ना तो छींटे नहीं उड़ते। ये जो बेपरवाही से चलते हैं ना, हवाई चप्पल पहन के पच 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 करके खुद भी अपने पीछे छींटे उड़ा रहे होते हैं और अतराफ वालों को भी नवाज रहे होते हैं। तो ये जो नादान लोग होते हैं ना, ये इनके अंदाज ये होते हैं। वरना जो मोहतात आदमी होगा वो अगर संभल के चलेगा ना, जैसे आप पूरा पाँव जो है ये जमा लेंगे ना कि वो पिछला हिस्सा वो बार बार उठकर पानी ना उड़ाए, तो इसकी कोशिश करेंगे ना, तो इस टेक्निक से अगर आप चलेंगे ना तो पीछे छींटे नहीं उड़ेंगे, कम से कम उड़ेंगे। बहरहाल ये है पाक, जब तक नजासत का मालूम नहीं है। और नमाज पढ़ी तो हो जाएगी, जनाजा पढ़ा तो भी हो जाएगा। इज्तिमा में जाने से वही के इज्तिमा आमतौर पर हमारे मस्जिदों में होते हैं या अवाम जहाँ इकट्ठी होती है, वहाँ अगर इस तरह के छींटे हैं और बदबू भी आ रही है अगर, और दूसरों के कपड़ों पर लग रहे हैं, तो वहाँ ऐसी हालत में ना जाया जाए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवालात आ रहे हैं,
میرا سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت آئی ہے، یعنی پہلے صف میں کھڑا ہونا افضل ہے، جبکہ نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت آئی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ شرعی مسئلہ یہی ہے، یہ سب سے بڑی اور اہم حکمت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو اس میں حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ اگر صفیں اگلی اس کی صف ہی افضل قرار دی جاتی تو سارے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ صفیں کم بنتی، جبکہ نماز جنازہ میں صفوں کی تکثیر یعنی زیادہ ہونا یہ پسندیدہ ہے، تو اس لیے پچھلی صف کو افضل قرار دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ صفیں یہ بنیں۔ دوسرا یہ کہ جو سفارش کرنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نماز جنازہ، وہ ایک طرح سے سفارش کرنے والے ہوتے ہیں میت کی، تو اللہ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ سفارش عرض کی جائے گی، اس کے لیے بخشش کی بات کی جائے گی، اتنا ہی مقبول ہے، اور پیچھے جو ہوگا اس کے اندر اتنی ہی عاجزی کا اظہار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الباسط کا سوال ہے، نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ کی تسبیح کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا کرے؟ یہ تسمیع کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو یہ سنت ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ اکبر کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہا تو سنت چھوٹی، البتہ نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی کے بال 14 سال کی عمر میں ہی سفید ہو گئے تو کیا یہ بڑھاپا کہلائے گا؟ بعضوں کے پیدائشی سفید بال ہوتے ہیں، بھورے بال ہوتے ہیں، تو بڑھاپا 60 سال کی عمر ہے نا، یہ پورا بڑھاپا ہے۔ اگر 25-30 سال کی عمر میں آ گئی بال، 40 سال کی عمر میں آ گئے بال سفید، اور حقیقت یہ ہے کہ سفید بال چونکہ اکثر بوڑھوں کو آتے ہیں اس لیے یہ بڑھاپا کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں سفید بال ہونا یا کالے بال ہونا یہ بڑھاپے کی وہ نہیں ہے، بلکہ بعض بزرگ ہوتے ہیں عمر رسیدہ، ان کے بال سفید نہیں ہوتے سارے۔ الحمدللہ میرے سر کے بال کالے ہیں، پر تھوڑے تھوڑے سفید ہوئے ہیں، باقی تقریباً کالے ہیں۔ تو یہ بھی ہے نا کہ بوڑھوں کے بال کالے بھی ہو سکتے ہیں، اور جوانوں کے سفید ہو جاتے ہیں۔ حاجی امین مسکرائے کہ آپ کے سفید ہو گئے یا سر کے بال؟ ہو گئے نہیں، ہم نے یہاں پر سفید ہو گئے، ان کے سفید، اللہ کی مرضی ہے، ان کے سفید بال پر تو نہیں، مگر اس وقت ہم نے اس وقت آپس میں بیٹھے تھے تو آپ کے سر پر ماشاءاللہ کالے بال کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ کے سر کے بال جو ہے نا وہ تقریباً کالے ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آپ کے سفید ہو گئے نا، آپ کے سفید ہو گئے۔ کیا رہے جس میں جن کے سفید ہو جاتے ہیں نا، کالے کے بعد سفید بال آنا، یہ موت کا یعنی کہ ملک الموت کا قاصد ہے، یہ وکیل یعنی قاصد ہے، پیغام رساں، اب تیاری کرو۔ تو اب یہ کہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ میرے سفید بال نہیں تو نزلے سے ہو گئے، یہ وہ خالی خالی من کو مناتے ہیں کہ نزلے سے ہو گئے اور موت آ جاتی ہے۔ تو کالے کے بعد سفید بال آنا جو ہے نا، یہ موت کے قریب ہونے کی علامت، یعنی موت تو ویسے ہی قریب ہے، زیادہ مطلب آدمی اب بد تیاری کرے۔ ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں ایک تابوت رکھا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر موت کو یاد کرتا تھا۔ ایک بار اس نے جب صبح آئینے میں دیکھا تو اس کی داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، تو اس نے کہا کہ اب یہ تابوت اٹھا لو، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری داڑھی میں سفید بال آ گیا نا تو یہ موت
का कासिद है, मलकुल मौत का ये कासिद है, मैसेंजर है, पैगाम रसा है कि अब मेरी मौत करीब आ गई है। मौत को अब इसे मैं अपने सफ़ेद बाल को देखकर मौत को याद कर लिया करूँगा। और हम है कि बस सफ़ेद बाल, सारे के सारे सफ़ेद बाल हो गए, लेकिन अफसोस इबरत नहीं लेते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। निगरान पाक काबीना का एक सौती पैगाम आया, पहले कुछ एक सूरी पैगाम चला था, उसके तहत निगरान पाक काबीना का सौती पैगाम आया था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की जनाब में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई दावत इस्लामी के अरबों रुपए खुद कफील करने के लिए मदनी बस्ते लगाते हैं, डोनेशन सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे आशिकान रसूल मुआवनत करते हैं, आकर सैकड़ों हज़ारों लाखों रुपए जमा करवाते हैं। आपसे इल्तिजा है कि जो इस्लामी मदनी बस्ते पर आकर मदनी अतियात देते हैं, इन्हें को दुआओं से नवाज दें ताकि हमारे मदनी अतियात में और बहारें आ जाएं और हम मदनी काम को मज़ीद आगे लेकर बढ़ सकें। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो सिलसिला मदनियत के हवाले से मदनी बस्ते लगाए जाते हैं, घरेलू सदका बॉक्स, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिलसिला है और इसमें इस्लामी बहनों के हवाले से भी हमें मुख्तलिफ़ कारकर्दगियाँ मिलती हैं कि इनकी तरफ से भी महारिम के ज़रिए जो है वो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। और जिस तरह हमारे निगरान ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में इसकी खुसूसी तहरीक चलाई गई और माशाअल्लाह मुल्क भर में इसके बहुत अच्छे जो है वो सिलसिले हुए, तो आप सबके लिए दुआ फरमा दें। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मदनी एहतियात बॉक्स लगाते हैं, लगवाते हैं, इसके लिए भागदौड़ करते हैं, इसमें मदनी एहतियात डालते हैं, जमा करते हैं, ले जाते हैं, जिस तरह भी इसमें हिस्सा लेते हैं, इनको सिर्फ अपने दर का मोहताज रख, किसी गैर का मोहताज ना करना। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, खुश नसीब इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें अमीर अहले सुन्नत के अता करदा रसाइल का मुताला कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खूब बरकतें हासिल कर रहे हैं, दुआएं हासिल कर रहे हैं। आपको भी हम दावत पेश करते हैं कि इन रसाइल का मुताला कीजिए और ज़ाहिर तादाद हो चुकी है 78 से ज़ायद। तो मकतबतुल मदीना ने एक बॉक्स तैयार किया है और उस बॉक्स में अब तक के ऐलान शुदा रसाइल ये शामिल किए गए हैं। इस बॉक्स में क्या है, आइए आपको इसका एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है रज़वी बॉक्स, जिसमें मौजूद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से हफ्तावार पढ़े जाने वाले रसाइल का मजमुआ, जिनके लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बेशुमार दुआओं से नवाजा है। तो आज ही मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से रज़वी बॉक्स 1100 रुपए हदिया में हासिल करके इन रसाइल का मुताला करें और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की खूब दुआएं हासिल करें। जो कोई रिसाला मिसवाक शरीफ के फजाइल के 20 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसको मिसवाक से प्यार करने वाले मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा बना दे। जो कोई रिसाला वुज़ू और साइंस के 23 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसकी खतरनाक बीमारियों से हिफाजत फरमा। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई रिसाला कफन चोरों के इंकिशाफात के 19 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना। आमीन। घर बैठे रज़वी बॉक्स हासिल करने के लिए आज ही इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 0313113978। मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना। इन्होंने पढ़ लिए, उनको भी चाहिए कि ये
रज़वी बॉक्स हासिल करें और मेहमानों के लिए रखें। अपने मेज़ पर जो मुलाकाती आते हैं, जो ड्राइंग रूम होता है उसमें सजा कर रखें। जो ले जाना चाहे उसको इजाज़त भी दे दिया करें। तो इस तरह भी इंशाअल्लाह आप सवाब के हकदार होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं उदास बहुत रहता हूँ, रातों को नींद भी नहीं आती और इबादत भी करता हूँ कि सुकून मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। किसी का सवाल है। उदासी का सबब तलाश करें कि आखिर क्या है, उदासी क्यों है, सदमा क्यों है, गम क्यों है। अगर उसका सबब पता चल जाता है तो उसका इलाज कर लें, उसको दूर करें सबब को, तो फिर उदासी दूर रहेगी। या ये कि नफ्सियाती असर होगा कि बस मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, जैसा भी आपने पूछा, तो दोस्तों में भी हो सकता है तज़किरा करते हो, घर में भी ये बात गाय गाय कह देते हो कि मैं उदास रहता हूँ, मुझे बहुत गम रहता है। तो इस तरह तो मतलब ये कि बंदा जो है वो नफ्सियाती मरीज बन सकता है। तो इसलिए अपना इलाज आपके हाथ में है कि इसको दूर करें। नीज ये कि हो सके तो रोजाना 60 मरतबा 60 टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 60 टाइम, और पानी पर दम करके इसको पी लिया करें। इंशाअल्लाह आपका गम उदासी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो दुआ अभी बताई मैंने कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब गम हाजिर होता तो आप बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ये याद कर लें, ये वक्तन फवक्तन पढ़ लिया करें। एक परेशानी दूर होने की ये भी दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अल्लाह ताला परेशानियों में से जिस परेशानी को दूर चाहेगा वो दूर हो जाएगी, दूर फरमाना चाहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये जो आपने अभी इरशाद फरमाया ना, जैसे ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका अभी तस्करा भी हो रहा था, एक वर्ड है बाबा, बाज़ लोगों के लिए कहा जाता है एब्सेंट माइंडेड पर्सन। ये मतलब ये जहाँ भी हो ना वो वहाँ होते नहीं है। ये इसको यूँ आम तौर पर कहते हैं गुमसुम रहता है। लेकिन ऐसे बाद औक़ात तो ये एक इंसानों की बातों का तबीयत होती है कि ये एब्सेंट माइंड होते हैं। ये जहाँ होना वो होते नहीं है, कहीं उधर सोचते हैं, उधर सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाज़ औक़ात ख़तरात बढ़ जाते हैं। यानी एब्सेंट माइंडेड पर्सन, जिसको उठते बैठते चलते फिरते जो है ना वो वहाँ नहीं होता जहाँ इसका बदन है, ये कहीं और घूम फिर रहा होता है और मुख्तलिफ सोचों में ये गुम होता है। ऐसे बातों का सड़क पार करते करते भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये सीढ़ियाँ उतरते इनको गिरने का डर रहता है। इनके हाथ में चाय हो तो ये कुछ और गरम चाय बातों का ये पी जाते हैं यूँ ठक करके, और फिर इनकी आवाज़ निकलती है, ओह ये क्या हो गया। तो ये एक बाकायदा लोगों की एक हैं लोग ऐसे जो एब्सेंट माइंडेड पर्सन होते हैं कि वो हाजिर जहन नहीं होते और कहीं और होते हैं। और ये मतलब कि ये एक फजूल किस्म की, जैसे बाद औक़ात होता है ना कि वो मदीने की याद में गुम है तो मक्के की याद में गुम है, फ़िक्र आखरत की तरफ इसकी को तवज्जो चली गई है, तो इस तरह का वो तो ज़ाहिर वो तो एब्सेंट है ही नहीं, वो तो हाजिर ही हाजिर है। और ये सोचे उसको बहुत इंशाल्लाह उम्मीद है कि दुनिया और आखिरत में तरक्की दिलाएंगी। लेकिन फजूल किस्म की चीज़ों में पढ़कर फिर ये अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक शख्स को ये जो अगर खुदा ना खासा ये चीज़ लग जाए कि वो गुमसुम रहता और कहीं और घूमता, तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इस आदत को निकाले, क्योंकि इससे इसको काफ़ी ज़हमत और अज़ियत होने के अंदेशे रहते हैं।
हाँ, ये तबका होता है, बस अब क्वालिटी होती है इस तरह की कि ये बेचारे मतलब बस इसमें होते ही है। तो अब ये कि अपनी सोचों का रुख बदले, दुनियावी सोचें हैं तो आखिरत की सोचें पैदा करें। अगर किराए के मकान में रहते हैं और ये सोच बनती है कि मेरा ओनरशिप हो जाए, अपना मकान हो, वो भी आलीशान, इसके बदले वो मदीने की यादों में घूम रहे, सब्ज गुंबद के तस्वर में खोया रहे, कब्र आखिरत को याद करे ना, अपनी सोच का जाविया जो है ना ये तब्दील कर दे, तो इससे ये कि सवाब तो मिलेगा यार माशाअल्लाह। यानी अच्छी सोचें जो है आखिरत की या मदीने की याद या काबा शरीफ का तस्वुर, अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब होगा तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अच्छा, इसी तरह एक तबीयत होती है लोगों की, वो शायद अपने या तो इनके इख्तियार में नहीं रहता, ये अपनी ज़बान को पूरा करने में, अपनी बात को पूरा करने में, या मैं यूँ को अपने कमिटमेंट को पूरा करने में ये नॉर्मली नाकाम से हो जाते हैं कि जब आप इनसे किसी काम की नीयत या इरादे कराएं या उनको कहेंगे ये आप करना, तो वो बिल्कुल उस टाइम पर ये करेंगे, लेकिन ये कर नहीं सकेंगे। और नतीजा इसका ये निकलता है कि फिर एक तादाद इनके बारे में जहन बना लेती है कि यार इनसे मतलब ये होगा नहीं, यहाँ कह देगा लेकिन करेगा नहीं। इससे इनकी जो शख्सियत मुतासिर होती है, डैमेज होती है, और लोग इनके बारे में फिर ये तय कर लेते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। अव्वल ये कि ये तबीयत कैसी, दूसरा ये कि ये तय कर लेना क्या ये बदगुमानी में शुमार होगा कि यार ये करेगा नहीं, कि ये करीना वाज़े है कि ये करेगा नहीं और ये बदगुमानी नहीं कहलाएगी। इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? नहीं, ये बदगुमानी नहीं कहलाएगी, क्योंकि करीना है ना, इसको तजर्बा है कि ये है ही ऐसा, क्या ठिकाना है नहीं, ये पूरा करेगा क्या। फिर इसी शख्सियत अपने अंदर इस्लाह कैसे करे, क्योंकि ये भी दुरुस्त नहीं है कि एक इस तरह के तादाद है, बहुत ज्यादा तादाद है ऐसों की तादाद ज्यादा। आप इतने सारे कोर्स आपने चलाए हुए आजकल, एक कोर्स और बढ़ा दें, उसका नाम क्या रखें? सोच बदल कोर्स। तो ये मतलब वहां में आज कर रहे होते हैं, आज सबको मतलब हाँ बोलते होते हैं, और मैंने दूसरों को बोले यार हाँ मैं हाँ करो ना यार, करता कौन है। ये आदत होती है लोगों की जो कि यार बहुत गलत है। ये सरदाराबाद वालों को बड़ा जोश आया हुआ है लगता है। आज जो सरदाराबाद और अलग अलग नजर आ रहा है, नहीं याफुर में हरकत में आ रहे हैं, सुना बाबुल मदीना वाले भी तैयारी करके आ रहे हैं। मदीना प्याले में नहीं होता दीवानों, मदीना प्याले में नहीं होता, मदीना दिल में होता है। असल में नीचे कुछ लिखा होगा बाबा, ये प्याला जो है ना इन्होंने शायद वो बनाया, खाली प्याला या वो कासा होता है ना बाबा, कासा। तो ये तारे खामोश है, बड़ी अंधियारी रात है, डाकुओं के लूटने को ईमा के तारे खामोश है, बड़ी अंधियारी रात है, ईमा के लूटने के लिए डाकुओं की घात है। ऐ डाकुओं ये जिस्म लो, ये जान लूट लो, ये दिल न दूंगा, इसमें मदीने की बात है। तो प्याला तो लुट भी जाएगा और टूट भी जाएगा। तो मदीना, दिल मदीना बना लिया हमने, दोनों आलम को पा लिया हमने। तो दिल में मदीना बस बसाना है, प्याले में नहीं। कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद, कह दो मुर्शिद। हाँ जी, यापुर तो भरपूर तैयारी के साथ। नहीं, सरदाराबाद वाला दिखाई दे रहा है, सरदाराबाद वाले क्या कर रहे हैं? अब बाबुल मदीना भी सुना है, जमीन कह तो रहते हैं कि आज को ज्यादा तैयारी है। ये जो सरदाराबाद के कैमरा मैन है ना, ये प्याले लाए, ये जरा वो थोड़ा कैमरा अपना हटाएं और आवाम की तरफ लेकर आए, मेहरबानी करें, कैमरा डायरेक्शन सही करें। तो मदीना बर्तनों में थोड़ी आता है बाबा, वह सरदाराबाद में फिर कासा इसी तरह का मिलता होगा ने, आज ही शायद ने अपना वो प्याला बनाया हुआ असल में, तो कौम तो प्याले के पीछे।
कासा भी बनाया बाबा वो तो कशकोल। काला प्याला और लाल प्याला ने क्या लगा रखा है यार? इसमें कुछ मदीना थोड़ी आता है। मदनी मुन्ने का हाँ, खा के शिफा के प्याले आते हैं, मदीने के प्याले। प्यारे बापा जान, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को चल मदीना होना हो तो वो क्या करें? चल मदीना होना हो तो क्या करें? वो मेरे लिए दराजी उम्र बिल खैर की दुआ करें कि आप बड़े हो जाएं, आपका शनाख्ती कार्ड बन जाए। 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड आमतौर पर बनता है, तो आप बड़े हो जाएं और मदनी इनामात के अमल करना अभी से शुरू कर दें और पक्के हो जाए। और मैं भी जब तक अल्लाह करे आफियत के साथ जिंदा व खैर रहूं और आप बेकरारी के साथ मदनी इनामात पर अमल करते हुए चल मदीना का मुतालबा रखें, तो यूं आपकी भी तरकीब बन जाएगी चल मदीना की। अभी दुआ करनी होगी आपको मेरे लिए आफियत के साथ जिंदा रहने की। मजलिस मदनी इनामात की तरफ से जो हमें कारकर्दगी मिली है, 3128 इस्लामी भाइयों के नाम आ चुके हैं जो 66 और इससे ज़ायद मदनी इनामात पर अमल कर रहे हैं। इसमें खुसूसी इस्लामी भाई भी हैं जो ये इशारों के बैनर लेके खड़े हैं। 3128 नाम आ चुके हैं। अजी अमीर, ये तो खुसूसी इस्लामी भाइयों के इशारे हैं। जी जी, ये खुसूसी इस्लामी भाई 3128। तो आप मदनी मुन्ना, ये भी मदनी मुन्ना चल मदीना का मुतालबा कर रहा है। देखो माशाअल्लाह। तो 3000 से ऊपर 66 मदनी इनामात पर अमल करने वाले। जी जी बाबा। तो हवाई जहाज कितने चार्टर कराने? बाबा कम से कम 10 या 12वीं के 12 बन जाएंगे अगर अभी तक ये लिस्ट को लॉक कर दे। इस्लामी बहनें भी तो होंगी ना? जी जी, वरना फिर वो पानी के जहाज तो रुक गए ना पापा, या तो फिर 12 बन जाएंगे। तो आप बस इस पे 12 से बढ़ाने नहीं है ना? 12 तक तो हो गए ना, मतलब 3000 ज्यादा समा जाते। तो आप मालूमात करो कि चार्टर्ड ये हज के चार्टर्ड विमान होते भी है कि नहीं? बाबा मैं तो बोलूँ कि इस बार तो 26 जहाज़ों की तरकीब बना डालें बाबा आप। 26 जहाज़ों का चल मदीना का मदनी काफिला उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में। बारात मदीने, क्या बात है, क्या बात है। वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी, उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में। आज ये याफुर कुछ कह रहे हैं। ले जा बापा। हाजी याफुर रो रहे हैं। याफुर भाई कह रहे हैं रो रहे हैं। बाबा रो रहे हैं, शक्ल तो बता रही रो रहे हैं। तो दोनों काम कर रहे हैं। जी हाँ। रोने वाले को ले जाए बापा। वो रोने वाले को ले जाए कह रहे हैं बाबा। रो रहे। तो मैं तो रह जाऊंगा याफुर, ऐसा तो नहीं करो। बापा ले जाए। बापा शिका दे। सुभान अल्लाह, जो रोकता है उसका काम होता है। बापा चल मदीना बापा। क्या बात है। मुर्शिद ले चले बापा, मदनी इनामात वालों के सदका ले जाए बापा। ले चले बापा, निगरानी का भी ना भी रो रहे हैं बापा। ले जाए बापा, बापा ले जाए बापा, बापा ले चले मुर्शिद। सदाराबाद भी जरा दिखा दे, सदाराबाद की क्या पोजीशन है। बाबुल मदीना के दिखाएं क्या पोजीशन है। चल सदाराबाद
बापा ये बाबुल मदीना वाले भी रो रहे हैं, मदनी नामाद नवीद बापू भी रो रहे हैं बापा, खुसूसी इस्लामी भाई भी रो रहे हैं, इशारे में आपसे फरियाद कर रहे हैं कि इनको भी चल मदीना होना है बापा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आने वाली जुमेरात इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि अमीर अहले सुन्नत यहीं फैज़ान मदीना में जलवा फरमा होंगे और मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह यहाँ सामने बैठकर भी फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा। तो शायद ऐसा तो लगता है कि आने वाली जुमेरात को तो सबको आना चाहिए, हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत करें, फिर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। यानी आने वाली जुमेरात तो ज़्यादा टाइम ही लेकर आए कि इसके बाद खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में सदा चल मदीना की ठीक ठाक महफिल ना जम जाए और खूब ये आ ना जाए बाबा, ये दुनिया भर के आशिकान रसूल आने वाले जुमेरात ही ना आ जाएँ कि भाई चल मदीना का इंशाअल्लाह वो मदनी तोहफा लेकर ही जाएंगे। वैसे ये है अच्छा, लगता है जो मदीने में मौजूद है, मदीना आने वाली जुमेरात को मैं भी सोच रहा हूँ यार कि चल मदीना का बाकायदा दरवाजा खोल दिया जाए। सुभान अल्लाह, उस्कुरुल्लाह, हमारे यहाँ वतन अजीज़ में 6 सूबे तकसीम हैं। अब ये 6 सूबों में से किस सूबे से कितने आशिकाने रसूल चल मदीना की सादत हासिल करते हैं। तकरीबन 107, 108 या 110 पता नहीं कितने शोबे हाजी शाहिद भाई के यहाँ बने हुए हैं और तंजीमी 6 सूबे, तो इसके कितने बनते हैं और वो पता नहीं किस शोबे से किस मजलिस से कौन चल मदीना की सादत हासिल करते हैं, ये भी देखने। फिर बैरून मुल्क के कितनी काबीनाएँ, कितने मतलब मुल्कों के अंदर ज़िम्मेदार बने हुए हैं, न जाने किस मुल्क से कौन चल मदीना की सादत हासिल करने में कामयाब होता है। सब ने अपनी अपनी तरफ पे कोशिशें करनी है, इस्लामी बहनों ने भी करनी है, इस्लामी भाइयों ने भी करनी है। मियार अमीर सुन्नत ने अता फरमा दिया है और ज़ाहिर है कि फिर आखिर है तो ये चल मदीना अमीर सुन्नत ही का। तो वो हुजूर ये बताइए, इरशाद फरमाइए कि अगर कोई शख्स इस वक्त है ही मक्के मदीने में, कोई इस्लामी भाई या इस्लामी बहन, और उन्होंने चल मदीना के लिए दरख्वास्त देनी है और उनके मदनी इनामात पर अमल भी है, तो मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में रहें, इंतज़ार करें या यहाँ आकर फिर चल मदीना हो? अगर वीज़ा इनके पास है पक्का, वहाँ रह सकते हैं तब तो रहें। अगर वीज़ा इनका उम्रे का वीज़ा है तो वो तो लिमिटेड दिन होते हैं, तो गैर कानूनी काम की तो मैं ज़ाहिर है कि मशवरा दे ही नहीं सकूँगा। तो उनको यहाँ आना ही होगा अपने वतन में, जहाँ से भी जो किसी भी मुल्क के हो तो अपने मुल्क जाना ही पड़ेगा ना तो उनको।
फिर वो चल मदीना का नए सिरे से सफर होगा। और अगर ऐसा नहीं है और वहाँ का पक्का वीजा है, वहाँ रेसिडेंस वीजा इनके पास, वहाँ रहते हैं, काम धंधा है इन लोगों का, तो वहाँ से भी चल मदीना हो सकते हैं। टिकट 66 मदनी इनामत है इस्लामी भाइयों की और इस्लामी बहनों की 63 में से 58। तो इस्लामी बहनें भी माशाअल्लाह इनका भी जज्बा है और इनकी भी ये भी तलबगार होती हैं, इनके भी मदनी इनामत पे अमल होते हैं, ऐसी सारी बहनें होती हैं, मगर वो महरम की वजह से बेचारियां रह जाती हैं। आपने फरमाया टिकट 66 मदनी इनामात है, तो ये इंतज़ाम हो जाए तो फिर हज का टिकट तो मदनी मरकज़ की तरफ से हो जाएगा। अगर वो खाना पीना सोना जागना पहनना उठना सब अगर वो मांग कर करता है तो फिर ठीक है, वो इस पर भी गौर किया जा सकता है। तो हम किसी को मदनी मुज़ाकरे की या इज्तिमा की दावत दें या मदनी काफिले में सफ़र की दावत दें तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा खाना पहनना सब हमारे ज़िम्मे है। अंडरस्टूड है कि हज का सफ़र करना है, मदीने का सफ़र करना है तो अपने पल्ले से करना चाहिए। ये तो मैं पहले ही ऐलान करता आ रहा हूँ कि अखराजात हैं आपके पास, अखराजात तो बात करें तो मेरे पास कुल 12 हो चुके हैं नाम, वो 66 मदनी इनामात और इस तरह का जो तरकीब है, तो वो नाम और उनके मतलब शनाख्त के लिए उनकी तस्वीरें मेरे पास आ चुकी हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप के ज़रिए। अभी तो ये 12 हैं, अब इनमें कौन कौन बेकरार है ये तो ये पहली जुमेरात आएगी ना, चांद रात है या नहीं है बहरहाल तो पता चलेगा कि बेकरार कौन है। तो लेकिन किसी किसी की बेकरारी का भी यानी कि वो रोने धोने वाले भी सोती पैगाम सुने हैं मैंने, तो ये ज़्यादातर रोने धोने वाले वो होते हैं कि मदनी इनामात नहीं होते और बेचारों के पास वसाइल नहीं होते। जिनके पास पैसे होते हैं ना उनको तो एतमाद होता है कि मेरे पास तो पैसे हैं और मदनी इनामात पर अमल है, तो उसको भी यूँ होता है कि मेरे पास तो है ना तरकीब। तो यूँ मतलब है, मतलब मसला है, जो फुट फुट कर रोए ना तो समझ जाना चाहिए कि ये करम वाला है। अच्छा, अब क्या मदनी इनामत के जरिए ही तरकीब करें, यानी 3000 ऊपर मुझ तक पहुंची थी इत्तला, ये ताज़ा तरीन इत्तला जो कल तक पहुंची थी कि 1500 मदनी इनामत वाले हैं। अब एक दिन में डबल से भी बढ़ गए, इतनी स्पीड बढ़ रही है। तो 3 महीने भी हो चुके होने चाहिए 92, या मुमकिन है कि रिपोर्टर अलग अलग होते हों तो यूं रिपोर्टों में तब्दीली आ जाती हो। अच्छा, इसमें एक इरशाद फरमाए कि क्या इस्लामी भाइयों को, मेरे सामने तो अभी 12 आए हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं आए, मैंने मंगवाए थे तो मिले हैं। क्या इस्लामी भाइयों को अखराजात हो उनका मुझे भेजा जाए। ये इरशाद फरमाए क्या इस बात की इजाज़त है कि कोई गमे मदीना में अपने आंसू आपको मतलब कि वो किसी बोतल में भरकर या मदनी दारुस्सुन्ना में या मदनी इनामत की मजलिस के पास जमा करवा दे, अश्के इश्क का कोई ख़जाना उसके निकलता हो, बोतल जैसे कि आंसू से भर ले कि ये गमे मदीना फ़िराक़े मदीना के आंसू हैं और ये बोतल हमारे कोई मजलिस के पास। एक मजलिस तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको बनानी पड़ जाएगी इस अभी जो हमारा चल मदीना का जो सिलसिला हो रहा है, क्योंकि वो कोई दारुस्सुन्ना पे जमा कराएगा, कोई मदनी इनामत के मजलिस के पास जमा कराएगा, तो अब ये कोई मजलिस से चल मदीना शायद बने तो बने, वल्लाह बेहतर जानता ही, तो आप ही बनाएंगे तो बनेगी, आपको अगर लगेगा ज़रूरत है तो। अब अश्के इश्क तय कौन करेगा, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती रोना पड़ेगा। कोई प्यास काट के रोएगा, कोई धुएं जारी करके रोएगा कि आंखें जले और आंसू निकले, तो ये अश्के इश्क तो ना हुए। और अश्के इश्क तो होते हैं वो सारे छुपाने की चीज़ है, बोतलों में भरने की चीज़ तो है नहीं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अच्छा, एक इस्लामी भाई का सवाल ये है कि मेरे खराटों से, यानी घर वाले मेरे खराटों से अजियत का शिकार होते हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे बस में नहीं, इसका कोई हल इरशाद फरमा दें। इसका एक मेडिकल हल तो है, मुझे पता चला है। कोई ऐसी चीज़ मैं भूल गया, मैंने लिया था वो, नहीं उसका नाम हम लिया था अत्तर भाई से, तो अत्तर भाई नज़र तो आए थे स्क्रीन पर चंदवारी है, अब कौन से शहर में ये नहीं पता मुझे, ये नजर आ गया। ये फैज़ान मदीना, फैज़ान मदीना में। तो इनको माइक दो, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना होता, जनरल नाम हो अगर उस चीज़ का, तो ये रहनुमाई हो जाएगी कि उससे खराटे दब जाते हैं। इनका फरमाना ये है, इनको माइक दो भाई। हुजूर माइक उन तक पहुंच रहा है। अर्ज ये थी कि जिसको खराटे हैं आते हैं, वाकई तकलीफ तो होती है कि एक अगर खराटा ले और कई आदमी अगर कमरे में सोए में, तो सब बेचारे आजमाइश में आ जाते होंगे। तो उसको ये एहतियात नहीं करनी चाहिए कि अगर वो कहीं सफ़र पर है तो अपने कमरे के इस्लामी भाई को बता दे। खराटे बहुत जोरदार होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सफ़र पे ऐसा होता है तो अब वो क्या करे? वो उसको कह देना चाहिए कि मैं खराटे वाला कमरा चाहिए ना फिर इसको। जी पहले से बोल देगा तो जिसको नींद नहीं आती उसको आती है, उसको भी नहीं आएगी खौफ के मारे। अब यह कि बाजों का तो हल्के हल्के खराटे होते हैं, और बाजों का बस क्या बोलूं मैं, ऐसे होते हैं कि बस पूछो मत। ये बेचारे खुद मजबूर होते हैं, अपने इख्तियार में होता नहीं है वाकई। बाजों वो थकन से आते हैं कि अगर नींद कम की है, एक आध दिन जागा हुआ है, फिर हट जाओ, फिर उसके करीब नहीं सो सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वापस सर्जिकल की शॉप से स्नोरिंग स्ट्रिप्स के नाम से ये एक आइटम मिल जाता है, जो कि नाक पर लगाना होता है, तो इससे खराटों की आवाज़ में बहुत हद तक अफाके की सूरत होती है। स्नोरिंग स्ट्रिप्स। इफाका क्या होता है? कम कम आवाज़ पैदा होगी, फिर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। अच्छा, माशाअल्लाह। इस पे अर्ज यही है कि अपने डॉक्टर के मशवरे से ही, क्या मेडिकल स्टोर वालों को पता होता होगा? नहीं हुजूर, ये अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, क्योंकि ये नाक में लगने वाली डिवाइस है और रात के सोते में कोई इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बेहतर यही है कि डॉक्टर को दिखाए। आपके मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए ये पता चल गया कि कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो खराटे की आवाज़ कम कर सकती है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसका तरीक़ाकार समझ के यूज़ किया जाए। मदीना हाँ, साइड इफेक्ट भी होते हैं तो ताज्जुब नहीं। अच्छा, सरदाराबाद वालों ने वो प्याले हटा दिए। मैं तो वैसे तफन्नुन में कह रहा था, प्याले हटवाने के लिए नहीं कह रहा था। नहीं, मैं वैसे ही वो लगा लो भाई, प्याले लगा लो यार। इतनी बेचारे मेहनत से प्याले लाया है पीछे, प्याले में डाल के देना। प्याले वाले पीछे चले गए, यूं शायद तरकीब कर दी है। नहीं, ये भी दीवानगी है यार, ये भी इश्क है। दुआए अत्तार हदीस पाक में है, जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए तो 70 शयातीन उसमें शरीक हो जाते हैं। या रब करीम, जो कोई रिसाला 163 मदनी फूल के 40 सफ़ात पढ़ या सुन ले, उसे मदीने के सदा बहर फूलों के सदके मुस्कुराता रख। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल देखते रहिए। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर आशिकान रसूल रसाइल पढ़ते भी हैं और इसकी कारकर्दगी भी हमें जो है वो भेजी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हफ्ते जो अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला इरशाद फरमाया, आइए उसकी कारकर्दगी हम सुनते हैं। पिछले हफ्ते जो रिसाला था मुर्दे की बेबसी,
पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 4,58,452 4,58,452 और इस्लामी बहनों की तादाद 3,42,982 3,42,982 और इसी तरह बैरून मुल्क ओवरसीज़ से इस्लामी भाइयों की तादाद 32,106 और ओवरसीज़ से इस्लामी बहनों की तादाद 43,068। यानी पिछला जो हफ्ता गुज़रा इसमें हमें जो कुल कारकर्दगी मिली है वो 8,76,608 8,76,608। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 लाख का जो हदफ अमीर अहले सुन्नत ने अता फ़रमाया है उसकी तरफ पेशकदमी जारी है। वो आशिकान रसूल जो रिसाला नहीं पढ़ते वो भी पढ़ने की नीयत करें और कारकर्दगी ज़रूर अपने ज़िम्मेदारान को जमा करवाएं ताकि हम इस हदफ को भी पालें और अमीर अहले सुन्नत की दुआएं हासिल करें। हमारी पाक अमजदी काबीना अमजदी ज़ोन से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों एक माह के मदनी काफ़िले की खुसूसी ट्रेन चलाई गई और जो मदीनतुल औलिया मुल्तान में जमा हैं और इस वक्त भी कुछ देर पहले इनके मनाजिर भी दिखाए गए कि ये जमा होकर वहाँ मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। इस सफ़र में उनको आजमाइशें भी आईं, बारिशें हो रही हैं तो कुछ सफ़र में भी मसाइल हुए। तो अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि हमारे ये आशिकान रसूल इनका हौसला भी बुलंद रहे और इनका दिल लगा रहे, तो कुछ आप इनको भी दुआओं से नवाज दीजिए। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इनका दिल लगा दे, इनका सफ़र बखैर हो। जो गज़वात हुए इनमें आंधियाँ, तूफ़ान, बारिशें सब कुछ हुआ है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं और आगे कूच जारी रखते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे ये मदनी काफ़िले वाले भी आगे कूच करते रहें और इनका मदनी काफ़िला जो है ये आगे बढ़ता रहे। अभी ये बूंदा बांदी और कतरे पड़ने से मतलब आप भाग जाओगे, वो तीरों की बारिशों में नहीं भागते थे, तलवारों की झनकारों में नहीं भागते थे, बल्कि आगे बढ़े जाते थे, सीना सिपर रहते थे। तो ये बूंदा बांदी क्या मतलब यानी कि आशिकान रसूल का रास्ता रोक देगी? तो ऐसा नहीं है, आप हिम्मत ना हारिएगा। हर दुश्वारी के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह जितना आप तकलीफें उठाएंगे आपको सवाब भी उतना ज़्यादा मिलेगा। गिला शिकवा नहीं करना है, बेसब्री नहीं करनी, अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़ते रहें। और जो आपने अज़्म किया है एक माह के मदनी काफ़िले का, तो उसमें से 1 घंटा भी कम नहीं करना है। बढ़ाने की कोई हर्ज नहीं है, बढ़ जाए तो कम नहीं करना है। अल्लाह करीम आपके कदम जमा दे। और जो इस तरह मदनी काफ़िलों में ये बारिशों के बावजूद ये हमारी ट्रेन के साथ जो सफ़र कर रहे हैं ये अपना मदनी काफ़िला पूरा करें। अल्लाह करे कि इनके कदम सिरात मुस्तकीम पर भी जम जाए और अल्लाह करे पुल सिरात पर भी इनके कदम ना डगमगाएं। पुल सिरात भी अल्लाह करे कि महबूब की सल्लिम सल्लिम की दुआओं के सदक़े में पार हो जाए आफियत के साथ और जन्नत में चले जाएं। ये दुआएं मेरे हक़ में भी कबूल हो, हर दावत इस्लामी वाले और वाली के हक़ में भी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति
السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ تمام اجر و ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص آنے والی جمعرات سے جو رجب شریف کے 6 یا 7 مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، ان میں جو کم از کم 1 گھنٹہ اور 6 منٹ شرکت کرے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب مصطفیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، مولا پرہیزگار بن جائیں، متقی بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت بھی نصیب ہو، ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر ہو، موت کے وقت بھی ایمان سلامت رہے، کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو، پیارے محبوب کے جلووں میں ایمان عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کی ہمیں قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں،
جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے شفا کی خیرات طلب کر رہے ہیں، مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، جو بیچارے اسپتالوں میں ہیں اے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، جو مریضوں کے نمائندے ہیں مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو بارے قرض تلے دبے ہیں مولا قرضے سے خلاصی نصیب ہو جائے، جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں اے اللہ اچھا آسان حلال طیب روزگار نصیب ہو جائے، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں مولا محبتیں پیار عطا فرما، گھروں میں امن و امان سکون نصیب ہو، ہمارے گھر گہوارہ سنت ہو جائیں، اے اللہ ہمارے بچے کو نمازی بنا دے، متقی بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، عاشق رسول بنا دے، اے مولا بے اولادگیاں رشتوں کی رکاوٹیں سب دور فرما، یا اللہ مدنی مذاکرے میں شامل تمام عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین سب پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت اور طریقت کا ہے مجموعہ مدنی